Welcome to my channel Chemistry Video, and I am Noman Ahmed, and today we are going to discuss the important topics of thermodynamics, and that is enthalpy. So today the topic is enthalpy. What is enthalpy? In most of the books you might have studied the definition that heat content of a system at constant pressure is called enthalpy. So we can say that heat content of a system at constant pressure ये डेफिनेशन है हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय symbol capital H. H is the symbol of enthalpy. So H means enthalpy. Enthalpy is nothing, just heat content, or we can say it is nothing, just enthalpy is heat content of a system at constant pressure. One formula which is very much important: delta H is equal to delta U plus delta mgrt. इस फार्मूले से भी आप वाकिफ हो गए होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. कहाँ से आया? लेट्स डिस्कस. H किसकी इक्वल होता है? U प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम. यानी एंथैल्पी किसके इक्वल है? हीट कांस्टेंट, जिसको यहाँ पे जो U है दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. P क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है. V वॉल्यूम. तो H यानी एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस, इन सब बुक्स, कुछ बुक्स में ये E भी लिखा हुआ है, यानी बोथ आर करेक्ट. U प्लस E ये दोनों सही है. U भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. H is measured in joule, but in most of the case you will see in kilojoule. Both are important. You can measure it in joule and kilojoule. Both are important. But here हम यहाँ पर H U plus E नहीं, we will find change in enthalpy, change in internal energy and change in pressure volume. हम यहाँ पे हम किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी मालूम नहीं कर सकते, चेंज इन एंथैल्पी हम मालूम करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए बार बार पूछा भी जाता है कि व्हाई डू वी यूज डेल्टा, बिकॉज वी कैन नॉट यूज H, we will always use delta H. change in enthalpy, change in enthalpy, change in energy, and change in pressure volume work. Change in pressure and volume. So this is very important. You will write delta H, delta U plus delta PV. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर H की सिग्निफिकेंस ऑफ H क्या है? नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि H की हमें इसकी सिग्निफिकेंस नहीं चाहिए. We cannot measure the exact value of H, तो हम कह सकते हैं कि we cannot determine the exact number या value of H, यानी हम H को फाइंड नहीं कर सकते. तो है significance of H is nothing. Change in enthalpy, change in internal energy, change in internal energy.
and change in pressure volume, very much important. Okay, so these are the important things about enthalpy. Okay, enthalpy, as we mentioned, H is equal to U plus PV, and we can say H is equal to E plus PV, both are correct one. But here we will only measure change in enthalpy. So change in enthalpy will be delta H, delta U plus delta P और V. हमने H नहीं मेजर करना है, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H, डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम. तो हमने इसमें डेल्टा का वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है. ओके, here one thing is very much important. What is PV? Now see, P1 V1 is equal to P2 V2. तो हम ये कह सकते हैं फाइनल, दिस इज इनिशियल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P2 V2 minus P1 V1. ये भी कह सकते हैं क्योंकि P2 V2 is final pressure volume and P1 V1 is the initial pressure volume. Okay, one thing is very much important that ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला, आपको दो चीजें बहुत याद होनी चाहिए. एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रेशर पे आते हैं. तो ओनली 10% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 90% क्वेश्चन प्रेशर से आते हैं. तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? इसके लिए फार्मूला बना डेल्टा H डेल्टा U. इसी फार्मूले को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को हम बाहर लिखेंगे V डेल्टा P. दिस इज फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम. और कांस्टेंट प्रेशर के लिए यही फार्मूला हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब प्रेशर है तो प्रेशर को बाहर निकाल देंगे तो P डेल्टा V. दिस फार्मूला इज फॉर 99% questions and this formula is for 10%. most of the question comes from at constant pressure. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम कर लेते हैं. और ये जो फार्मूले हैं ना, ये वाले 100% करेक्ट, ये 100% करेक्ट है फॉर एनी प्रोसेसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए. एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है कि a non-ideal gas goes from a non-ideal gas goes from state 1 to state 2. A non-ideal gas goes from state 1 to state 2. और कंडीशंस क्या है? स्टेट 1 की कंडीशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. 2 ATM पे इसके लिए जो कंडीशन है 2 ATM, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन ऑफ दिस इज राउंड अबाउट 3 लीटर इज द वॉल्यूम and 95 Kelvin is the temperature. These are the condition of state number 1. And state number 2 has its own 3 conditions. 2 ATM to 4 ATM, yani the pressure increases from 2 ATM to 4 ATM, from 3 to 5 liter, and 95 to 300, okay, not 300, 245 Kelvin. These are the important relationship. Now this is the question. Now what is find? We are going to find delta H if delta E is find. The question is find delta H if delta E is 30 ATM. Very important and simple question. A non-ideal gas goes from state 1 to state 2.
state 1 is 2 atm 3 liter and 95. This is the pressure, this is the volume. Let me write. This is the pressure, this is the pressure, this is the volume, and this is the temperature. This is pressure, this is volume, and this is the temperature. These three are the conditions. Now see, these three are the conditions. So that we have to find delta H. So you need not to do anything, just write down the formula. The formula is, what will be the formula? Delta H is equal to delta U plus delta P and V. This is the formula. Now what is the delta? Delta U and delta E, both are same. So you can say 30 plus. Now change in pressure and volume. What is the pressure and change in the pressure and volume is a very 20 to 26. Now let me solve it. 20 minus 6, so that roundabout will be 30 plus 14, that is 44. That will be the answer. 30 plus 44 atm. I think atm. This is the, that will the answer. Liter per atm. Liter atm will be the answer. So this is the simplest question. Just calculate it if I put the value wrong or correct, but the formula is very simple now. This is the question number 1. I hope you got the idea. Now come to another point. Another question number 2 from the same topic. Now question 2 says an ideal gas expands isothermally. An ideal gas expands isothermally from an ideal gas isothermally expand from 1 liter to 10 liter, from 1 liter to 10 liter at 25 degrees centigrade, at 25 degrees centigrade. An ideal gas expands isothermally from 1 liter to 10 liter at 25 degrees centigrade. Find the value of change in enthalpy. Question is find the value of change in enthalpy. This is the question. An ideal gas expands isothermally from 1 liter to 10 liter at 25 centigrade. Find the value of change in enthalpy. So very important question. Now see, one thing is very much important. The same formula will be applied. Delta H is equal to delta U plus delta P and V. Now see, always remember that U and T internal energy only depends on temperature. Only depends on temperature. This is very important. You are आप जब भी मैं लेक्चर देखेंगे मैंने हमेशा कहा हुआ कि आइसोथर्मली में हमेशा जो चेंज एनर्जी होगी U इंटरनल एनर्जी, ये क्या होगा? टेम्परेचर के ओनली डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता. किसके लिए? जब गैस आइडियल हो. मैंने आइडियल गैस की एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द temperature. This is important. Note, for ideal gas internal energy only depends on temperature, यानी किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती. तो अगर आपके पास ऑप्शन भी आए हैं, फर्स्ट करो सपोज आपके पास आंसर के ऑप्शन है A, B, C और D. ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट करो ऑप्शन 7.2 प्लस माइनस 7.2 प्लस 3.2 और 0, ये ऑप्शन आ जाएगी. इनसे कौन सा आंसर आएगा? सो लेट्स डिस्कस इट. नाउ सी, जस्ट पुट द फार्मूला. द फार्मूला इज डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस. अब देखिए चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा वी और डेल्टा यू में क्या फर्क होता है. डेल्टा यू अब चेंज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर तो जब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले के यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? चेंज एनर्जी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, तो 0 प्लस 0
तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा डी। So this is another important question of small questions, but there are some tricky questions in this question. One thing more important, okay, enthalpy is a state function. State function. What is state function? It only depends. State function means it only depends on initial and final point. It does not depend on the path. आप ये कह सकते हैं it does not depend upon path. ये इस पर डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल क्या था फाइनल क्या था, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। सपोज आपके पास एक ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम का है, एक रिएक्शन ए से बी हो रहा है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इस रास्ते से जा रहा है जैसे पाथ 1, या इस रास्ते से जा रहा है पाथ 2। तो इस स्टेज पर इसका जो प्रेशर होगा और यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ पे भी इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। So it does not depend on this path, it only depends the initial and the final value. So enthalpy is a state function. Second point, very important. Enthalpy is state function. यानी आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा H only depends, यानी H final minus H initial. This is point number 1, this is point number 2. यानी HF यानी final enthalpy minus initial, यानी इसकी only it's a state function, so it depends only on initial and final points. Number 3, it is an extensive property. Independent, जिस तरह एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव। जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ क्वांटिटी पे हो तो उसको इंटेंसिव कहते हैं, लेकिन जो only depends on mass, size, quantity, या वे कह सकते हैं अमाउंट पे डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड करे, तो वो क्या कहलाता है एक्सटेंसिव। तो एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि डेल्टा एच जो होता है ये साइक्लिक के लिए क्या है 0 होता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एच नंबर 4 डेल्टा एच साइक्लिक के लिए 0 होता है। क्यों? आप यहाँ से चले थे घूम के वापस इधर आ जाए तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करती है। तो ये 4 चीजें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए 1, 2, 3 एंड 4। ओके, आगे आते हैं इसके साथ एक कुछ और रिलेटेड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को इसके साथ हम रिलेट करेंगे। एंथैल्पी जो होता है, अभी हमने क्या कहा एंथैल्पी किया है, यहाँ पे लिखेंगे एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस P और V, ये हमने कह दिया। अब अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। क्योंकि हम एंथैल्पी नहीं मालूम कर सकते, हम चेंज इन एंथैल्पी मालूम करेंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, हमने यही चीजें याद मालूम। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, प्रेशर में से P बाहर निकाल दे तो P डेल्टा V। ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी की। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देख लें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा Q प्लस इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज वर्क डन, या स्मॉल क्यू भी हो सकता है, कैपिटल क्यू भी हो सकता है, इट डजंट अफेक्ट द क्वेश्चन। अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अगर एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे W का फार्मूला क्या था, वर्क डन का फार्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। इस वैल्यू को लगाएंगे तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। जी ये फार्मूला मैंने W की फिगर पुट कर दिया। जी ये फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी एक्सटर्नल का फार्मूला आ गया। एक चीज और भी देखें, अब यहाँ पे अगर हमने डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई है, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास आई है डेल्टा यू प्लस पी, और ये अब हम एक डेटा के ये देखना चाहते हैं कि अगर इसको मैं यहाँ पे ले लूँ, इसको मैं बाहर ले लूँ, तो ये बेटा ये आ जाएगा डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू, ये अंदर आ जाएगा तो डेल्टा यू प्लस, और ये क्या हो जाएगा, आपके पास पी डेल्टा वी प्लस में आ जाएगा। तो आपको ये देखा, ये दोनों इक्वेशन में आपको एक सिमिलरिटी नजर आ रही है, सिमिलरिटी, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, और अगर इसको डेरिवेशन में लिखेंगे तो डी एच इज इक्वल टू डी क्यू पी। नोट कर लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ तक मैंने आपको दोनों का रिलेशनशिप बताया कि एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक में कितनी सिमिलरिटी है। जी यहाँ तक नोट कर लें बेटा, अगर नोट कर लिया तो ये अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कहता है 2 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड, 2 moles of helium is heated at constant pressure, at constant pressure. 2 moles of helium is heated at constant pressure from 0 centigrade to 50 centigrade. From 0 centigrade to 50 centigrade. Question: 2 moles of helium is heated at constant pressure from 0 centigrade to 50 centigrade. Question: find enthalpy change in joule. The question is find enthalpy change in joule. This is the question. 2 mole of helium is heated at constant pressure from 0 centigrade to 50 centigrade. Find enthalpy change in joule. Now बेटा एक चीज और याद रखना कि डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, एन सी पी डेल्टा टी। ये फार्मूला देख लें, एन सी पी डेल्टा टी, या आप ये कह सकते हैं कि अगर इसी की जगह दूसरा लिखेंगे तो हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ये भी फार्मूला ठीक है, दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों में आपने क्या है, ये फार्मूले से अगर आपने इसमें स्मॉल चेंज लाना है, अगर आप इसमें स्मॉल चेंज लाना चाहेंगे तो ये हो सकता है डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी के, और इसके लिए क्या हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी। ये वेरी स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन हीट के लिए दोनों फार्मूले हमने बहुत स्मॉल, लेकिन दोनों में फार्मूला पुट करना है। ये वैल्यू है। अब Cp की वैल्यू हमारे पास क्या है, Cp की वैल्यू मैंने पहले भी बताई थी, F/2 + 1 R के इक्वल होती है। व्हाट इज F? F इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पिछले न्यूमेरिक क्वेश्चन में पढ़ा भी था, पिछले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा था कि F की वैल्यू 3, F की वैल्यू 5 और F की वैल्यू 6 होती है। 3 कब होती है, मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक कौन कौन से होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। F की वैल्यू 5 होती है डाई एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक के लिए कौन कौन सी है, O2,
N2 एक्सेट्रा। और F की वैल्यू 6 कब होती है? पॉलीएटॉमिक के लिए। पॉलीएटॉमिक में कौन कौन से आते हैं? SO3 और O3, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये वैल्यू, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ये वैल्यू आ जाएगी। और R की वैल्यू तो फिक्स है, R की वैल्यू हमने फिक्स करनी है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, या R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो इस वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 50, अबाउट 50। तो ये आ जाएगा आपके पास, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द चेंज इन एंथैल्पी इन जूल। और अगर किलो जूल में निकालना है तो 1000 पे डिवाइड कर दे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इन एंथैल्पी। ओके, एक और क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड आ सकता है। सपोज द क्वेश्चन इज, अगर हम क्वेश्चन बाद में कर लेते, फर्स्ट एक रिलेशनशिप कर लेते। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ये है डेल्टा H और डेल्टा U के अंदर, डेल्टा H और डेल्टा U के अंदर, और केमिकल रिएक्शन इन गैसियस स्टेट में अगर है तो कौन कौन सा है? जैसे फर्स्ट को एक रिएक्टेंट R, एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट P। तो हमने ये भी देखा है कि H क्या होता है? H आपके पास क्या है? U प्लस PV, यानी एंथैल्पी होता है यानी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम के। अब प्रेशर किसकी, अगर हमने ये भी देखा है कि अगर हम इसमें इसको चेंज ले आए, इसको इसी फार्मूले को अगर हम ये इस फार्मूले को ले आए चेंज में, डेल्टा H की वैल्यू का इसका क्या फार्मूला होता है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P और V। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में अगर हमें मालूम भी है कि PV किसकी इक्वल होता है? PV इज इक्वल टू nRT। तो इसकी जगह पे मैं ये फार्मूले भी लगा सकता हूँ। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। nRT की वैल्यू मैंने लगा दी nRT। अब अगर n हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अब देखो n ये भी ले सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, और n नंबर ऑफ मोल Ng है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये, और n डेल्टा Ng कैसे मालूम कर सकते हैं? कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये फार्मूला है इसी से रिलेटेड, जो कि हमने इसको करना भी है। तो ये वो क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखी है कि जहाँ पे भी प्रेशर होगा और टेम्परेचर, तो याद रखना n की वैल्यू अगर बढ़ेगी, सॉरी n नहीं, अगर यहाँ पे v की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी तो n की वैल्यू भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, n डेल्टा Ng इज इक्वल टू Np माइनस और Nr जी। तो ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मैंने आपको बता दिया इसी में रिलेटेड से। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि कहते हैं फाइंड, क्वेश्चन है कि फाइंड डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U, या डेल्टा H इज लेसर देन डेल्टा U, या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा Ng जो है ना ये क्या है? फर्स्ट करो। अब हमने ये क्वेश्चन देखना है कि इसमें एक इक्वेशन हमें गिवन है। इक्वेशन क्या है? N2 प्लस H2 goes to form 2NH3। दिस इज द क्वेश्चन। अब ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, और ये भी गैसीय स्टेट में है। अब हमने ये देखना है कि रिलेशनशिप क्या कहता है। अब हमें रिलेशनशिप तो मालूम है, रिलेशनशिप क्या फार्मूला है कि अगर हम Ng की वैल्यू मालूम करेंगे, आप देखिए इसमें फार्मूला क्या है, आप गौर से देखें इस फार्मूले में Ng क्या होता है? डेल्टा Ng इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट की। अब देख लें यहाँ पे 2, 3 और 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू में हम पुट करेंगे तो 2 - 4 = -2,
तो फर्स्ट केस में अगर हमने ये देखा 2 - 4 -2 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब इस वैल्यू में अगर हम डेल्टा एन जी आर टी पुट करेंगे तो हमें या पहले में हमने क्या करना है, एन जी की जगह या ये पुट करना है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल को करके या इसकी जगह पर आपने पहले ये वैल्यू पुट करनी है, फिर दूसरे केस में आपने क्या पुट करनी है, एक और इक्वेशन अगर इसी तरह आता है यानी H2 प्लस Br2 और इससे 2HBr आए तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, 0 है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा H की जगह पर अब यहाँ पे डेल्टा एन जी इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे 2 2 0 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आ सकता है डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस 0, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ये भी बहुत ही आसान सा एक रिलेशनशिप है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस इंथैल्पी से रिलेटेड आते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट करो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज C12 sorry not C12 C6H6 plus 15 O2 goes to form CO2 और H2O। एक क्वेश्चन है, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 12 ये आ जाएंगे और 6 ये आ जाएंगे। इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। अगर ऑप्शन हमारे पास ये है कि एक ये बेटा ये लिक्विड में है, ये गैस में है, ये गैस में है और ये लिक्विड में है, तो हमारे पास अगर ऑप्शन A B C और D 4 ऑप्शन गिवन है और आपसे पूछा जाए कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो -7.2 पहले का आंसर, -7.2 प्लस 7.2 और तीसरा ऑप्शन अगर आपके पास है -3.2 और +3.2 हो, तो इनमें से आपसे पूछा जाए कौन सा बेस्ट आंसर है, तो बेटा देखिए आप इसका और इसका रिलेशनशिप मालूम करेंगे, तो डेल्टा एन जी यानी अगर आप फार्मूला लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो इसमें डेल्टा एन जी देखिए इन दोनों के मोल्स कंपेयर किए जाएंगे, तो 12 - 15 तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 - 15 3, तो -3.2 अगर इसका है तो -3 इसका नंबर ऑफ मोल के फार्मूले में पुट करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर 1 अगर इस फार्मूले में पुट करें तो आंसर की जगह पे अगर मैं इसको राउंड अबाउट सिंपलेस्ट कर लूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय और इनकी वैल्यू सारी पुट करके लगाऊं तो 8 × 800 × 300 तो राउंड अबाउट 72, और इसको अगर जोल में है तो किलो जोल में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 7.2, तो 7.2 क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो इसका आंसर जो है ना और राउंड अबाउट 7.2, अगर आंसर प्लस में है तो ये आएगा और अगर माइनस में है तो फिर ये वाला आंसर आएगा, तो आप खुद कैलकुलेट करके डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर है। मेरे पास कैलकुलेटर फिलहाल नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग द राइट फार्मूला। ओके, अब तक जो हमने चीजें पढ़ी वो हमने ये पढ़ा कि डेल्टा एच और डेल्टा यू एट कांस्टेंट ये आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे है, हीट कांस्टेंट, अगर आप डेल्टा की बात किए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी तक हमने ये कहेंगे एंथैल्पी हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और ये क्या होता है, हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो ये दो चीजें हमने अभी तक सीखी यहाँ तक। तो अगर इसका फार्मूला होगा तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा एच जो होता है वो हमने ये भी पढ़ा कि डेल्टा क्यू और पी के इक्वल होता है, और डेल्टा यू किसकी इक्वल होता है, डेल्टा यू इक्वल होता है डेल्टा, अब देखिए इसमें डेल्टा ये किसकी इक्वल है, डेल्टा क्यू वी के इक्वल है, कांस्टेंट
ये हमने अभी तक इन क्वेश्चन में और एंथैल्पी के इस टॉपिक में हमने ये चीज़ सीख ली। अगर हम इसी फार्मूले को पुट करेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या था, डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एच की वैल्यू थी डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमने फार्मूला पुट किया था डेल्टा एच के लिए। और क्यू पी के लिए हमने क्या फार्मूला किया था, कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम करेंगे तो यही फार्मूला हमारे पास कैसे आएगा, क्यू वी प्लस, यानी अगर एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसी तरह अगर यही फार्मूला इसी पे हो तो डेल्टा क्यू प्लस ये इक्वल होगा डेल्टा यू जो होगा डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन है, तो अगर इसी को वर्क डन को हम लें तो हम एक्सटर्नल, हम इस फार्मूले को मैंने पहले भी बताया है कि पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के इक्वल होता है। तो फार्मूले को अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये भी फार्मूला इसी से रिलेटेड है। या आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी की इक्वल होता है। अगर इसकी वैल्यू 0 तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी के इक्वल आ सकता है। जी, यहाँ तक तो हमने कुछ चीज़ें सीखी जो बेसिक थी एंथैल्पी के। एंथैल्पी की डेफिनेशन के लिहाज से तो काफ़ी डेफिनेशन है, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।